Good morning, students. Welcome you in your revision class. Today I shall revise you the chapter verbs non-finite forms. First of all, I want to tell you what is finite verb and what is non-finite verb. Let's see the examples. Number 1, Sarah jumps from the stairs. And second, they jump from the stairs. Look at these two sentences. Students, you see, Sarah jumps from the stairs. They jump from the stairs. Both tenses are in present. Both sentences are belong to present tense. But they modify subject. Jumps according to Sarah, jump according to they. So these verbs are indicate the tense. So these are finite verbs. Finite verbs that shows agreement with the subject. ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट शो करती हैं, संबंध शो करती हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर. मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है इनफाइनाइट वर्ब जो पर्सन है मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है. सारा इज सिंगुलर एंड दे आर प्लूरल. तो पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है और एंड नंबर इसके अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन एनी नेम. सारा इज इन थर्ड पर्सन, दे इज इन थर्ड पर्सन. तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड करेंगे आप आई एंड वी को, सेकंड में यू को एंड थर्ड पर्सन में ही शी इट दे एंड एनी नेम. एंड नंबर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. एंड इंडिकेट टेंस. और जो फाइनाइट वर्ब होती है जो किसको इंडिकेट करती है, टेंस को. फॉर एग्जाम्पल सारा जम्प्स, सारा इज सिंगुलर एंड वर्ब इंडिकेट टेंस एज जम्प्स एंड दे plural form, so we use jump. So these two sentences belong to present tense but verbs are different. These are finite verbs. Examples: Sarah likes to jump. They like to jump. Sarah liked to jump. They liked to jump. These are also two verbs. First likes and second jump. तो likes is finite verb. It is finite verb because it uses according to subject. Sarah likes to jump. मीन्स बेटा जो likes verb है वो किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुई है. बट जंप is not indicate to tense, not indicate to subject. They like to jump. In this sentence like is used according to subject, according to number, but to jump is not according to subject and according to tense. Like is finite and jump is non-finite and jump is non-finite verb. And third, Sarah liked to jump. Liked is finite verb and to jump non-finite. They liked to jump. Liked finite verb and jump non-finite. Non-finite, it does not change form according to subject. ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती. किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मीन्स पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड नंबर एंड सिंगुलर और प्लूरल. एंड डज नॉट इंडिकेट एनी टेंस, और किसी भी टेंस को इंडिकेट नहीं करती. और फाइनाइट में क्या था, ये वर्ब्स दैट शो एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट शो करती है.
मीन्स बेटा फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना एग्रीमेंट शो करती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट में ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती एंड डज नॉट इंडिकेट एनी टेंस, और ये किसी भी टेंस को भी इंडिकेट नहीं करती, और फाइनाइट वर्ब्स में टेंस को इंडिकेट करती हैं। आगे बेटा नेक्स्ट, मॉम इज कुकिंग इन द किचन। इज कुकिंग is finite verb. Mom will be cooking dinner in the kitchen. Will be cooking is finite verb. So these are finite verbs because these verbs are changed. These forms are changed according to tense. Now next example, mom loves cooking on Sunday. Mom loved cooking on Sunday. Mom will love cooking on Sunday. See in these sentences, mom loves cooking. Loves is finite verb and cooking is non-finite. These are two verbs. In these sentences, there are two words. First loves and second cooking. So first loves is finite and cooking is non-finite. Next beta, mom loved cooking on Sundays. Loved finite and cooking non-finite. Mom loves, the sentence in present. This verb is changed according to tense. Mom loved cooking. This sentence belongs to past tense and loved verb is used to tense, but cooking does not change its form. In present it also cooking, in past is also cooking. Mom will love cooking. Will love finite verb and cooking non-finite. The window pane, other example, the window pane was broken yesterday. The window pane was broken yesterday. Was broken, finite verb. Dad will repair the broken window pane today. In this sentence, there are two verbs, will repair and second broken. So, will repair, finite verb and broken, non-finite. इन दीज एग्जाम्पल्स यू शो, आपने देखा बेटा कि जो हमारी वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू टेंस और पर्सन चेंज हो रही है वो फाइनाइट वर्ब है, एंड सेकंड वर्ब दैट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर अकॉर्डिंग टू पर्सन, इट डज नॉट चेंज देयर फॉर्म, इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. Kinds. There are three kinds of non-finite forms. First, infinitive. Second, gerund. And third, participle. Infinitive. In infinitive, to plus base verb. जो हमारी बेस वर्ब होती है, जो हमारी वर्ब होती है, उससे पहले किसका यूज़ होता है? टू का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू साइकिल डाउन द हिल. तो टू साइकिल, फर्स्ट वर्ब इज वॉन्ट एंड सेकेंड वर्ब इज साइकिल. तो साइकिल्स के बिफोर, मतलब साइकिल से पहले हमने किसका यूज़ किया? टू का यूज़ किया. दिस सेंटेंस इज रिटन इन इन्फिनेटिव फॉर्म. सेकेंड, जीरंड. आईएनजी वर्ब फॉर्म एक्ट्स एज ए नाउन. इसमें बेटा आईएनजी वर्ब में आईएनजी ऐड होता है और ये जो वर्ब होती है वो एक नाउन की तरह काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज लव्ड साइकिलिंग. आई हैव ऑलवेज लव्ड साइकिलिंग. साइकिलिंग इज जीरंड. साइकिलिंग इज जीरंड. नाउ थर्ड, वर्ब फॉर्म acts as an adjective. in participle verb form, इसकी जो verb होती है वो form मतलब action करती है, काम करती है as an adjective. shows if an action in progress or completed. और ये show करती है in participle verb, ये show करती है कि काम
कंटिन्यूस वे में चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। आई सॉ अ बॉय, एग्जाम्पल देखिए बेटा, आई सॉ अ बॉय साइकिलिंग डाउन द हिल, साइकिलिंग डाउन द हिल, साइकिलिंग, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, साइकिलिंग डाउन द हिल, साइकिल चलाते हुए, डाउन द हिल, पहाड़ी के नीचे। नाउ पार्टिसिपल, participle also, participle has also three kinds. First, past participle. In past participle verb के लास्ट में बेटा, इन लास्ट ed, d, en, tn ये यूज होते हैं। ये कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव और अ कंप्लीटेड एक्शन। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है बेटा, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और एक कंप्लीट एक्शन होता है। एग्जाम्पल, the cat had jumped over the fence. Had jumped is past participle. The cat had jumped over the fence. Second, present participle. present participle में ing वर्ब फॉर्म में ing का यूज करते हैं। जो हमारी वर्ब होती है उसमें किसका यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म का। ये भी बेटा एक एडजेक्टिव की तरफ वर्क करता है। अदर एक्शंस क्या होते हैं इसके? अदर वर्क्स क्या होते हैं? अ कंटिन्यूअस एक्शन, इसमें वर्क कंटिन्यूअस वे में होता है। एन एक्शन इमीडिएटली बिफोर अनदर एक्शन, और दूसरा जो काम होता है वो एक एक्शन के खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है। एन एक्शन इमीडिएटली बिफोर अनदर एक्शन, एक काम से पहले दूसरा। आई शॉ हिम जंपिंग ओवर द फेंस, मैंने उसे फेंस के मतलब फेंस को जंप करते हुए देखा। मतलब एक वर्क खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा वर्क शुरू हो गया। देखा क्या करते हुए? कूदते हुए, जंप करते हुए। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स बेटा इसमें हैविंग का यूज होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसमें क्या होता है, क्या वर्क होता है इसका? परफेक्ट पार्टिसिपल में एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, मतलब दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? एक काम के खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है। बट परफेक्ट में क्या है कि एक काम के, एन एक्शन कंप्लीटेड, एक वर्क खत्म हो जाता है बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे काम के शुरू होने से पहले, इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग जम्प फ्रॉम द स्टेज शी गॉट हर्ट, स्टेज से कूदने के बाद उसने क्या कर लिया? अपने चोट लगा ली। शी गॉट हर्ट, उसके चोट लग गई। स्टेज से कूदने के बाद उसके चोट लग गई। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। द बॉय हैड कट हिमसेल्फ वाइल वर्किंग विद सीजर्स। द बॉय हैड कट himself while working with the scissors. Now beta, had cut is finite verb and working is non-finite verb. And अभी मैंने आपको बताया ना बेटा कि एक वर्क के कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्किंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बॉय हैड कट हिमसेल्फ, लड़के ने अपने आप को कट कर लिया। वाइल वर्किंग विद सीजर, कैंची से काम करते हुए, सीजर से काम करते हुए। तो इट इज वर्किंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जीरेंड किसकी तरह वर्क करता है? एक नाउन की तरह काम करता है। तो रनिंग इज जीरेंड, रनिंग इज जीरेंड। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई करना है हमें इस एक्सरसाइज में। आई फॉरगॉट टू टेक माई मेडिसिन टूडे। आई फॉरगॉट टू टेक माई मेडिसिन टूडे। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू वर्ब्स। फर्स्ट इज फॉरगॉट and second is to take. Forgot is finite verb and to take is infinitive. In infinitive verb, I told you about that to is used before verb. Verb से पहले किसका यूज होता है? to का यूज होता है। And finite verb is forgot.
तो to take is non-finite and it is infinitive verb. The workers came to collect their dues. In this sentence there are also two verbs. First is came. Came is finite verb, and to collect is non-finite and it is infinitive because to is used before verb, base verb. To is used before base verb. Next, smiling babies are a joy to watch. Smiling babies, मुस्कुराते हुए बच्चे, are a joy to watch. Here are three verbs. First, smile. Smile में ing का यूज हुआ है. are is auxiliary verb. It calls helping verb. And to watch is non-finite infinitive. And smiling is present participle. मुस्कुराते हुए बच्चे. The scattered garbage was collected in the bags by the tourist. The scattered is non-finite form and it is past participle. It is past participle and was collected is finite verb. Finite verb. So these are the identification that is done in this exercise. So I hope you all understand the difference between finite and non-finite verbs. Thank you for today and meet in next video.